Hello student, today we are discussing line integration and Green theorem. Uh, do you remember that last time we discussed the scalar potential and irrotational vector. So on the basis of irrotational and scalar potential, first we start. Let us suppose given H so that the line integration a to b x y square plus y cube dx plus x square y plus 3 xy square dy. We have to prove that first the given vector f is conservative field. F is conservative field and we can find out the f from f dot here. Okay. B part, we have to prove that the given integration is independent of path. It is independent of path. And third one, evaluate the given integration. Evaluate integral. The given integration, the work done, we know the work done from A to B is defined as integration A to B f dot dr. And if we say the vector f is given as f1i plus f2j plus f3k, then this integration can be written as integration A to B f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. We can write like this. So by this integration, we can find out vector f. Okay. We can write here vector f is equal to, we can replace in place of dx, dy, dz as ijk. We can write vector f is equal to xy square plus y cube I plus x square y plus 3xy square j. Because dz component is not there, so k component will be not be there. Now we have to prove that f is a conservative field. We can recall that irrotational vector. The condition for both the things are same. F is conservative field. So we can say for conservative field, we can say curl of
vector f, that should be equal to 0. So we have to prove that curl of f should be equal to 0 for this vector. Okay. So now prove this curl of f equal to 0. So taking this curl f, that is equal to del cross f. And you can remember that the same condition is for e-rotational vector. And from there, we have to find out the scalar potential. And using the same thing, we will find out the integration, right? In this case. So this can be written as, take this one, I del by del x, and this component is x y square plus y cube, j del upon del y, and this component is x square y plus 3xy square, and this is k del by del z, and this 0. So condition for conservative field and independent of path, both are same. We have to prove that curl of f equal to 0, right? So we can prove that this is curl of f. We can write this I, this del by del y of 0, that is 0, del by del z of x square y plus 3xy square, this is again 0. Similarly, j component is 0 and k component is 0. So we can say the value is equal to 0. Now, what do you mean by the independent of path? The condition for conservative field and independent of path are same. So first we just see what do you mean by conserve this independent of path. So if we have this one, let us suppose A is any point and B is any point. We want to find out work done from A to B, F dot dr. Okay. So independent of path means if we go from A to B, let us suppose by straight line. Okay. Now we take the other path, that is the red path, this one. We can go by this path, or we can go by this path. Okay. And we can go by this path. If from all the path the value of integration is same, right? Then we will say the integration is independent of path. And condition for independent of path is same, that is curl of f equal to 0. This condition is same. So if curl of f is equal to 0, so we can say the given integration is independent of path. We can take any path from point A to point B, will get the same result, same value of integration. Okay. So independent of path clear हो गया. We have these 2 points. Go from these 2 points from any path. For example, let us suppose I want to go from Ghaziabad to Delhi, right? So we can take the different road from A point to B point. If the total time is same, right? So here we are saying the total integration is same, value of integration is same by any path. So we say the independent of path. Okay. Now the second part, we want to find out the evaluate the integration. So first we find out the scalar potential. So the independent of path, condition is same. So it may be possible in the exam there is written a conservative field or independent of path. That means curl of f, this should be equal to 0. So already proved that this is equal to 0. Okay.
So first we find out the value of scalar potential. We know if this condition is satisfied, in that case vector F will be equal to del phi. There exists a scalar function phi such that del phi equal to F. We know this condition. So we can say del phi dot dr is equal to F dot dr. So this can be written as del phi dot dr is d phi. And what is F dot dr? That is F1 dx plus F2 dy plus F3 dz. Okay. So that is equal to यह में दिया है आपके पास the value of this is xy square plus y cube this dx. Okay. Plus x square y plus 3xy square this j. तो j की जगह पे आ गया टी फाई and dz component is not there. So as we know how to solve this, just left 3 line and after that you write this integrate partial integration. Logically it's not possible in line integration, but for solving or writing the answer we can just solve this. Partial integration of this without repetition x y square dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, we get x square by 2 y square plus y square dx क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y square x प्लस x square y dy. तो x square y square by 2 पहले से 3x y square dy, तो क्या हो जाएगा x y cube, ये भी पहले से प्लस सी. या इसके ऊपर लिख दीजिए आप इंटीग्रेट बोथ साइड. ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे लिखा जाए. ओके. इसके ऊपर आप लिख दीजिए यहाँ पे डी ऑफ, आ जाएगा फाई डी ऑफ, ये जो हमारे पास आया दिस वन, इसको एक साथ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई क्यूब एक्स, ये आ जाए. एंड इसके अबाउ लाइन में हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को एक साथ लिख देंगे. ओके. तो इसके कंपोनेंट देखिए एक साथ आप कैसे लिखोगे. यू कैन राइट दिस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई like this, and this plus y cube dx plus 3xy square dy. राइट. हमने क्या किया, कंपोनेंट को एक साथ किया एंड देन वी कैन से वी कैन राइट दिस. ओके. यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ डी ऑफ वाई क्यूब एक्स. दिस इज द स्केलर पोटेंशियल. नाउ becomes our integration. What is the integration? And just see the integration. Here point A and B, ये भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. Where point A is point A, point A ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2 एंड पॉइंट B ले लेते हैं यहाँ पे
It's given 3, 4. Now we want to solve this integration. Comes, अब देखिए इंटीग्रेशन a to b f डॉट dr एंड हमारे अकॉर्डिंग f डॉट dr क्या हो गया आपके पास? You can write this is equal to a to b d phi. Okay, and when we integrate d phi, so we will get phi of b minus phi of a, because the integration of d phi is phi and we already find out the value of phi. तो इसमें पॉइंट रखना है हमें, क्या पॉइंट दिया आपको यहाँ पे? पॉइंट इज गिवन 1 2 3 4. So we can say phi 3 4 minus phi of 1 2. Put the value here, we get 1 by 2, x की वैल्यू 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 into 4 square 16. Okay, plus this is 3 and 4 की पावर 3, that is 64. दिस वन, ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट हो गया. माइनस 1 2 रख दीजिए, 1 2 रखेंगे तो 1 by 2 1 4. ओके, 1.4 प्लस 1 2 क्यूब 8 आ जाएगा. राइट, इसको वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू 264 minus 10, that is equal to 254. We get this answer. So without using the line integration curve, we can find out the value of integration. Okay, so you can solve the question like this. Okay, taking another example of same type so that you can understand the things better. Okay, yes, then the question is given that determine whether the line integration whether the line integral, and that is given as integration a to b 2xy square 2xyz square dx plus x square z square plus z cos of yz. Here yz is the angle of cosine. Okay, this dy plus 2x square yz plus y cos of yz dz is independent of path. If so, then also evaluate. Then also evaluate the integration.
and point is given as point is 1 0 1 and B point is given as 0 pi by 2 1। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ दिखाना हो या फिर आपको कंजर्वेटिव फील्ड प्रूफ करना हो, दोनों बातें सेम है। तो पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं एफ डॉट टी आर। एफ क्या है, व्हाट इज एफ? एफ क्या होगा, जो भी आपको इंटीग्रेशन में गिवन है, dx की जगह रख दीजिए i, dy की जगह j, dz की जगह k। यू कैन से 2xy z स्क्वायर, dx की जगह i पुट कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड कोस ऑफ फाई जेड जे and this plus 2 times of x square yz plus y cos of yz this k। ये हमारे पास एफ वेक्टर आ गया। तो कंडीशन लिख देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कर्ल f should be equal to 0। Find the curl f। Curl of f, we already discussed how to define curl of f। In first line write this ijk I del by del x, write the I component 2xy z square, write here j del by del y and write this j component x square z square plus z cos of yz, then write k component del of del z and this is 2 x square yz plus y cos y। You get this? तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इसका कर्ल फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। या क्या आ जाएगा, देखिए आई वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर जेड, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करें, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस वाई कोस का क्या हो जाएगा साइन वाई जेड इंटू क्या, इंटू जेड
दिस प्लस पहले y का कर देते हैं 1 cos yz प्लस साइन माइनस yz साइन ऑफ y दिस माइनस z के रेस्पेक्ट में करिए 2x² z ओके और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास प्लस कोस yz माइनस साइन हमारा पहले से ही चल रहा था एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस जेड वाई कोस का साइन होगा प्लस साइन आ जाएगा साइन ऑफ वाई। आप देख सकते हैं ये हमारी सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेम तरीके से जे में भी आपका जीरो आ जाएगा और के में भी आपका जीरो। ओके कर्ल ऑफ एफ आपका आ गया जीरो। अब आते हैं हमारे पास डी फाई। डी फाई क्या होगा? डी फाई हो गया मेरे पास 2xyz² dx प्लस x² प्लस z cos of yz this dy प्लस 2x² yz प्लस y cos yz के की जगह पे dz पहले की तरह करेंगे फाई इक्वल टू तो आप लिख ही देंगे आई थिंक जैसे हमने पहले लिखा था। ठीक है तो फाई लिख दीजिए। फाई क्या हो जाएगा देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन विदाउट रिपीटेशन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो x²/2 से 2 कट जाएगा x²yz² प्लस इसको करेंगे x²yz² पहले से आ गया y cos yz y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे कोस का होगा साइन yz अपोन कितना साइन yz अपोन z z से z कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा साइन ऑफ yz यहां से प्लस 2x² x क्या z के रेस्पेक्ट में हो जाएगा x²y z²/2 2 से 2 कट जाएगा पहले से हो गया। इसको कैंसिल कर दीजिए इसको कैंसिल कर दीजिए y cos yz क्या होगा साइन yz अपोन y तो ये भी पहले से आ गया ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गई दो टर्म दिस प्लस सी दिस इज 5। नाउ अगेन कम्स द इंटीग्रेशन is given as a to b f dot dr. So this can be written as integration a to b d phi because we suppose that if this is true then del phi will be equal to f. तो सेम आपने आर्गुमेंट में लेना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था। ओके यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी देखिए हमारे पास वी गेट फाई ऑफ बी और बी पॉइंट हमें यहाँ पे दिया था 0 π/2 1 माइनस फाई ऑफ ए इज गिवन एज 1 0 1 राइट। इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 0 π/2 1 0 पहली वैल्यू 0 ये 0 हो गया 0 इंटू दिस yz साइन π/2 कितना हो गया 1 0 प्लस 1 आ गई पहली वैल्यू हमारी माइनस 1 0 1 ये 0 ये भी 0 0 वैल्यू हो गई 1 तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया 1
एंड दिस इज आल्सो डिफाइंड एज एफ डॉट डी आर। आगे चल, अब देखिए जो हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे पहले समझ लेते हैं। इफ वी हैव द, यहाँ से मैं इसको नया टॉपिक ले लेते हैं इसमें, एफ डॉट डी आर, line integration f dot dr, it can always be written as line integration of f1 dx plus f2 dy plus f3 dz। हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट द गिवन इंटीग्रेशन इनटू सिंगल इंटीग्रेशन, राइट। अगर आपके पास ये पाथ ए टू बी है, अब देखिए कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाथ विल बी देयर। सबसे पहला पाथ हम ले लेते हैं ए टू बी में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसको आप टी मानेंगे यार, एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट है, एबीसी का है, डायरेक्शन रेशो। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस ए टी, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस बी टी, एंड जेड इक्वल टू जेड वन प्लस सी टी। पूरे इंटीग्रेशन को आप टी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सोल्व करते हैं। ओके, सेकेंड, अगर ये 2D में लाइन की इक्वेशन हो तो क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, वो बेसिक सी बात है। तो यहां से आप आइदर इन y और x किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। ओके, अगर 2D की हम बात करें तो 2D में हमारे पास हो सकता है कर्व, सर्किल। व्हाट इज द इक्वेशन सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें आप ऑलवेज सपोज करेंगे x इक्वल टू ए कोस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। पूरे सर्किल के लिए थीटा 0 से 2 पाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं पैराबोला। पैराबोला जैसे मान लीजिए मेरे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका आपका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280। इन शॉर्ट अगर हम कहे, लाइन इंटीग्रेशन में आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उस सिंगल वेरिएबल में अगर आपने x में कन्वर्ट किया, x की लिमिट लिख दीजिए, y में कन्वर्ट करेंगे y की लिमिट लिखेंगे, z में कन्वर्ट करेंगे z की लिमिट लिखेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में और कोई नया वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल की लिमिट लिखेंगे। तो ये हमारा करना है इसमें। इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है हमारे पास ग्रीन थ्योरम। तो हम ग्रीन थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास देखिए आपके सिलेबस में 3 थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आज हम ग्रीन थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, ग्रीन थ्योरम डिस्कस करेंगे। ग्रीन थ्योरम बहुत ही अच्छी थ्योरम से, इसको हम जरूर करके जाए एग्जाम में। तो डिस्कस करते हैं ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम हमें क्या कहते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई taken on C, where C is a closed path, right? This will be equal to double integration R del n upon del x minus del m upon del y dx dy, where region R is bounded by curve C. Region R is bounded by curve C. Okay?
इन जनरल इसमें एग्जाम में हमारे पास क्या आता है, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम। वेरीफाई के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हमारे पास। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, इंटीग्रेशन आपको दिया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, and where c is given as the boundary of circle, boundary of triangle with vertex and vertex is given as 0 0 1 0 1 1, ये आपको रीजन दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम वी स्केच द रीजन, रीजन को पहले स्केच करेंगे। रीजन स्केच कर दीजिए। हम पॉइंट लेते हैं इसमें, ये होगा पॉइंट 0 0, ओके। दूसरा पॉइंट है 1 0, यहाँ मान लेते हैं 1 0, और एक और पॉइंट है इसमें 1 1, यहाँ कहीं मान लेते हैं इसमें 1 1, यहाँ से ले लेते हैं, देखिए दिस वन एंड दिस वन। तो ये ट्रायंगल हमारे पास है, जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना है, ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना। इसमें ऑलवेज आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करेंगे दिस वन। डबल इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो इसको कुछ नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ओ ए बी पॉइंट, ओके। इसमें आपको डबल इंटीग्रेशन लेना है। मान लीजिए हम इसमें वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, दिस वन दिस वन। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू 0, इसकी हो गई हमारे पास y इक्वल टू 1। अब फाइंड आउट कर सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स। क्यों, इसमें बोथ द कोऑर्डिनेट सेम है, तो y इक्वल टू एक्स आएगा। इसमें आप देखें दिस वन, इसमें 1 एक्स, ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 1 1 है, ओके। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू 1, पूरे पे 1 है, y चेंज हो रहा है, ये y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ओके। अब m की वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज m, m है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई, n आपके पास है एक्स स्क्वायर। थ्योरम लगा देते हैं, राइट हैंड साइड डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करिए इसको, 2x माइनस डेल एम बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। फर्स्ट राइट द डबल इंटीग्रेशन विद r, then write the limit. Now we can write the limit, integration from where to where, x coordinate 0 to x coordinate 1. Write this, x equal to 0 to x equal to 1. Second integration, how we write the limit of second integration, lower curve क्या है, x equal to 0,
सॉरी लोअर करके हमारे पास y इक्वल टू 0, राइट दिस y इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू 0 एंड अपर कर्व क्या है हमारे पास y इक्वल टू x, अपर कर्व मेरे पास y इक्वल टू x एंड इंटीग्रेशन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dy dx। तो ये लाइन y इक्वल टू 0, ये लाइन होगी हमारे पास x इक्वल टू 1, ओके, और ये लाइन होगी y इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन सिंपल है, वैल्यू आ गई इसकी 5/12 वैल्यू आ जाएगी, चेक करके देख सकते हैं। अब वेरीफाई करने का मीनिंग क्या हुआ, वी हैव टू सोल्व लेफ्ट हैंड साइड आल्सो, ओके। नाउ टेक द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मींस गिवन इंटीग्रेशन विद लाइन इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था लाइन इंटीग्रेशन में आपको कर्व की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ओके। राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड, we can write the left hand side integration c is equal to c of OA plus AB plus BU। ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं OA। OA की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा dy इक्वल टू 0। पुट इन द इंटीग्रेशन, यहाँ पे dy 0 रख दीजिए, y 0 रख दीजिए, तो 0 dx प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, ओके। नाउ कम्स AB। AB में इक्वेशन क्या है हमारे पास x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मीन्स dx इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन में जहां पे भी हमारे पास x हो उसकी जगह 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 y, dx क्या हो गया 0 प्लस 1 dy। द लिमिट ऑफ y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1, 0 टू 1, यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा y, ओके। तो y का मतलब क्या हो गया, वैल्यू इक्वल टू हो गई 1। अब आ जाए यहाँ पे BO। BO की इक्वेशन है देखिए y इक्वल टू x और वी कैन से dy इक्वल टू dx। So we have the choice, either we can convert y or we can convert in x, okay। इंटीग्रेशन y इक्वल टू x रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा x क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, okay, x square dx। What is the limit from 1 to 0? We will write the limit x equal to 1 से x equal to 0, okay। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की बार 4/4 होगा, और यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड वैल्यू कर दी हमने 0 से 1। लिमिट हमने इंटरचेंज कर दिया इसमें, 1 से 0 को 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया, एंड ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -7/12। तो इंटीग्रेशन c विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1 -7/12, वी गेट 5/12। यहाँ से क्या हो गया, थ्योरम हमारे पास वेरीफाइड हो गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें दे दे सोल्व
बाय ग्रीन थ्योरम। इवेल्युएट करना है आपको ग्रीन थ्योरम का यूज करके। ओके, स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आगे अब हम इसमें सर्किल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन सी 2x² माइनस y² dx प्लस x² प्लस y² dy। एंड आपको दे दिया इसमें सी आपको गिवन है अपर हाफ ऑफ द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू a² एंड x एक्सिस। रीजन बिटवीन द x एक्सिस एंड अपर हाफ ऑफ द सर्किल इज द गिवन रीजन। सबसे पहले इसको रीजन को बना लेते हैं भाई, दिस वन। ये हो गया हमारे पास। ये सर्किल हो -a टू a x एक्सिस y एक्सिस, दो पाथ आ जाएंगे तो दिस वन एंड दिस वन, o a पॉइंट b पॉइंट c पॉइंट, राइट। अगर आपको उसको वेरीफाइड करना हो तो सोल्व कर रहे हैं, वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, इसमें लिख देते हैं वेरीफाई, दोनों काम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं राइट हैंड साइड, क्या होती है डबल इंटीग्रेशन आर डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dx dy। ये हमारे पास n है, हमारे पास इस वन, डबल इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x माइनस y के रेस्पेक्ट में इसको करें माइनस ऑफ 2y dx dy r पे आपको सोल्व करना, राइट। यहाँ पे देखिए सर्किल है हमारे पास, तो सर्किल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं, कार्टेशियन से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहें। ओके, बट हम इसको पोलर से सोल्व करेंगे, इसी बहाने हमें पोलर फॉर्म में आ जाएगा, है ना। क्या करते हैं पोलर फॉर्म में, एक्स को लिखते हैं आर कोस थीटा, वाई को आप लिखोगे आर साइन थीटा। ऐसे आप ट्रायंगुलर स्ट्रिप लोगे लाइक दिस, ये स्ट्रिप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो 0 से पाई जाएगा, राइट। एंड dx dy का लेंगे ऑलवेज आर डी आर डी थीटा। व्हाट इज आर, आर क्या है यहाँ पे, ये जैकोबियन है, जैकोबियन मॉडुलस जैकोबियन की वैल्यू रख देते हैं भाई यहाँ पे 0 थीटा, कहां से, इस लाइन से घूम के यहाँ पे लाइन पाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 टू पाई। सेकेंड इंटीग्रेशन आर की बात करें, आर इक्वल टू कहां से कहां तक, आर इक्वल टू 0, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, एंड पॉइंट है सर्किल, और सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, आर इक्वल टू ए होगी, ये आपकी पोलर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन होती है 0 टू ए
एक्स प्लस वाई, आर बाहर ले लीजिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और डी आर डी थीटा। पोलर फॉर्म में इस सर्किल की इक्वेशन है आर इक्वल टू ए। कैसे आएगी, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे ऊपर। सर्किल की इक्वेशन में आर कोस थीटा और साइन थीटा पुट करेंगे तो आर इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन सोल्व द इंटीग्रेशन। आर आर हो गया आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3। लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा 2 ए क्यूब बाई 3। नाउ इंटीग्रेशन इज थीटा इक्वल टू 0 टू पाई and this cos theta plus sin theta and d theta, राइट। इसको सोल्व कर लेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन दोनों पे 0 हो जाएगा, एंड साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ कोस, तो ये आ जाएगा 2 ए क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन लिख देते हैं इसमें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 से पाई। तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा 4 ए क्यूब बाई 3 आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन। अगर वेरिफिकेशन करना है तो कैसे करें। वेरिफिकेशन के लिए ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले ले लीजिए सी ओ ए, लाइन की इक्वेशन है, क्या होगा, y इक्वल टू 0 डी वाई 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसमें y की वैल्यू 0 रख देंगे ऊपर, जो आपको इंटीग्रेशन दिया था, इसमें y की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स रह जाएगा, एंड दिस इज माइनस ए टू ए, दैट इज इक्वल टू 2, इवन फंक्शन है 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज 4 ए क्यूब बाई 3। दूसरा इंटीग्रेशन है इसमें सर्किल ए बी सी, इसमें सर्किल ले लीजिए ए बी सी, ए बी सी सर्किल। एक्स को मान लीजिए ए कोस थीटा एंड वाई को मान लीजिए ए साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन लिख दीजिए यहाँ पे, इसको सोल्व कर लीजिए। ओके, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट आ जाएगी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक, थीटा 0 से पाई, राइट। एक्स को ए कोस थीटा मान लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, प्लस वाई वाला लिख दीजिए भाई, प्लस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डी वाई क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा एंड डी थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप चेक कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी,
तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जीरो प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे सोल्व करें, कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। प्रॉपर्टी को कहते हैं 0 to 2a। जीरो से 2a एफ एक्स डी एक्स होता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। 2 टाइम्स हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स, और इसकी वो क्या होती है प्रॉपर्टी, अपर लिमिट माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए, और इसी की वैल्यू 0 होती है अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए। इसी प्रॉपर्टी को अब आप इंटीग्रेशन में अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2a की वैल्यू है पाई, तो एफ ऑफ पाई माइनस थीटा ये चेक करना है, कर लीजिए। तो पाई माइनस थीटा में देखें कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस माइनस तो माइनस कोस थीटा होता है, और साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे द इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू 2 टाइम 2a² माइनस आ जाएगा 2a³ कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, इसमें आ जाएगा प्लस 0, बिकॉज साइन की 3 पावर है, सॉरी, प्लस आ जाएगा आपके पास a³ साइन क्यूब थीटा, दिस वन। ये बीच में हमारे पास माइनस साइन था, राइट, इनटू में क्या था माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड डी थीटा पहले वाले पार्ट का, सेकंड में हमारे पास कोस थीटा की वजह से ये पूरा फंक्शन निगेटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा पूरा। ओके, इसको फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, अब आपको फार्मूला लगाना है इसमें, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें फार्मूला लगा दीजिए बीटा फंक्शन। रिमेंबर द बीटा फंक्शन फार्मूला, यस यू शुड रिमेंबर। जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा डी थीटा 1/2 बीटा पी प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2, ये होगा। ये फॉर्मूला लगा दीजिए भाई यहाँ पे। ए क्यूब को सबसे बाहर ले लेते हैं, 2a³ अपॉन 2, पहले वाले को हो गया -2, राइट, 1/2 मैंने पूरे से बाहर ले लिया, चलिए अंदर ही रहने देता हूँ, बाई 2 बीटा 1, पी की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2/2, 2/2, इसकी वैल्यू है 2, 2 + 1 3/2, 3/2 लिख दीजिए, राइट, प्लस 1/2 बीटा पावर कितना है 3, 3 + 1
4/2 एंड दिस 1/2, ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पास आ जाएगा 2a³ माइनस ऑफ कितना हो गया, β1 3/2, γ1 3/2 अपॉन a1 + 3/2 γ5/2। यहाँ पर आ जाएगा प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/2 γ2 गामा 1/2 गामा ऑफ 5/2। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, दोनों सेम आ जाएंगे 0। तो टोटल वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन सी इक्वल टू क्या, 4a³/3 + 0 इक्वल टू 4a³/3। यहाँ से हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया, राइट। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इंटीग्रेशन आपको क्यों बिना, इंटीग्रेशन सी x² - 2xy dx प्लस x² y + 3 dy। मैंने आपको सी दिया है y² = 8x एंड x = 2 की फिगर बना लेते हैं। y² = 8x, ये आ जाएगा आपका, यहाँ ले लेते हैं x = 2, y² = 8, राइट। कट पॉइंट ले लीजिए इसको पॉइंट मान लेता हूँ, ओ ए बी डायरेक्शन हो जाएगी लाइन इंटीग्रेशन। x की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y² 16 आएगा, 4 - 4 आ जाएगा, राइट। तो 2 4 पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट 2 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 4। वर्टिकल ले लीजिए लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, तो राइट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन r x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2xy माइनस विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2x, ओके। और एक -4 आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर dx dy।
We can write this 2 times of double integration x y plus 1 y plus 1 लिमिट लिख दीजिए। x लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, और y बोथ साइड में पैराबोला है, यहाँ भी पैराबोला ऊपर देखिए, ये भी आपका पैराबोला है, यहाँ भी आपके पास पैराबोला है। तो y की वैल्यू क्या? √8x प्लस माइनस √8x, तो माइनस √8x से लेके प्लस √8x dy dx. Okay. Now we can apply the property of definite integration, that is minus a to a fx dx. क्या होता है? We know this. This is 2 times of integration 0 to a fx dx. कंडीशन क्या होगी? f of minus x equal to fx, and this is equal to 0 if f of minus x equal to minus f. हमें लगानी है y के लिए। We have to apply for y. For y अगर हम देखें तो फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे y। कैसा फंक्शन है y? ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन की वजह से ये जो y वाला इंटीग्रेशन है ये आपका 0 हो जाएगा, केवल x बचेगा, y वाला क्या हो जाएगा? 0। दो पार्ट में लिख सकते हैं इसको। दिस कैन बी रिटन एज 2 times of इंटीग्रेशन 0 to 2, ओके। एंड ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन पहले वाला अंदर का 0 प्लस 2 times of इंटीग्रेशन 0 to √8x x dx. We can write like this, okay. कोई कंफ्यूजन आपको हो तो बताएं, क्योंकि हमें किस पे लगाना था? इसमें y पे लगाना था, y, और ये हो गया आपका dx। तो ये फर्स्ट वाला 0, सेकंड वाला रह गया आपके पास, ओके। तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, बाहर हो जाएगा हमारे पास देखिए 4 इंटीग्रेशन 0 से 2 x बाहर आ गया √8x dx। सोल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 128/5। अब आते हैं आप लाइन इंटीग्रेशन पे। लाइन इंटीग्रेशन सबसे पहले लेते हैं लाइन इंटीग्रेशन ए बी। ए बी में इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 2 dx इक्वल टू है 0। ये वैल्यू रख दे कहाँ पे? लाइन इंटीग्रेशन में रख दीजिए। क्या था लाइन इंटीग्रेशन हमारा? दोबारा से लिख देते हैं, सी x² माइनस 2xy dx प्लस x² y प्लस 3 dy। ये था इंटीग्रेशन। x को 2 dx को 0 रख दीजिए। यहां से क्या होगा? पहले वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा आपका 4y प्लस 3 एंड dy, और y की वैल्यू कहां से कहां तक? -4 से 4। अब देखिए अगेन
आपका जो y वाला पोर्शन है दिस वन, y कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जीरो हो जाएगा। ओके, क्या रह जाएगा यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ 2 into 3 इंटीग्रेशन 0 to 4 1 dy, राइट। दैट इज इक्वल टू 24। अब आते हैं इसमें एलोंग पैराबोला 4COA। COA देख लेते हैं क्या है भाई। यहाँ देखिए BOA, BOA आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसमें फाइंड आउट करना दिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पुट करेंगे और लिमिट कहां से कहां तक? y की लिमिट 4 से -4, यहां से टेल से लेके एंड तक चलेंगे, ठीक है। उसके लिए कहते हैं BOA, पॉइंट ले लिया आपने BOA, BOA वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, यहां से आप लिख सकते हैं इसमें dx इक्वल टू 2y dy अपॉन 8। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर, सबको y में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो x है वाई स्क्वायर बाई 8, तो y की पावर 4 अपॉन 64 -2, x की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर बाई 8, राइट। y dx क्या है हमारे पास? 2y अपॉन 8 dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया वाई की पावर 4 अपॉन 64 वाई प्लस 3 डी वाई, और वाई की वैल्यू कहां से कहां तक? वाई की वैल्यू हो गई मेरे पास, ऊपर था 4, नीचे था -4 से लेके -4, राइट। तो सोल्व कर देते हैं, देखिए क्या आएगा। माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, ठीक है। लिमिट देख लीजिए यहां से, ये क्या आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इविनोड फंक्शन लगा देते हैं, है ना। पहले इसको लिमिट को लिख देता हूँ, -4 से +4, 2 से कट गया 4 टाइम, तो 1 अपॉन 4 into 64, राइट। ये हो गया y की पावर 5 माइनस, ये भी 4 टाइम कट गया, 1/16 y की पावर 4, 3 + 1 4 प्लस y की पावर 5 अपॉन 64 प्लस 3, ये होगा dy। अब देखिए ओड फंक्शन देखिए कौन कौन सा है, जिसकी ओड पावर है वही ओड फंक्शन है, राइट। तो क्या क्या जीरो हो गया? जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, दो फंक्शन हमारे पास जीरो हो गए, ठीक है। ये भी जीरो, लास्ट टर्म क्या बचा है हमारे पास? -2 टाइम्स कर दीजिए, लिमिट को कर दिए 0 से 4 -1/16 y की पावर 4 प्लस 3 dy, राइट। इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी देख लीजिए यहां से।
सोल्व तो आई थिंक हो जाएगा, कोई बड़ा इसमें काम नहीं है। दिस इज आ जाएगी वैल्यू आपके पास 8/5। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन c इक्वल टू 24 प्लस 8/5 दैट इज 128/5। ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, और देखते हैं। बहुत ही अच्छी थ्योरम है ग्रीन थ्योरम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी पेपर में इसको जरूर करके जाएं। राइट, मे भी आपको एक क्वेश्चन वहां पे मिल जाए, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेरीफाई ग्रीन थ्योरम। इंडिकेशन यहाँ पे दिया देखिए हमारे पास c2 y² dx प्लस 3x dy, और यहाँ पे दिया c आपको y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x²। ये आपको फिगर दिया, फिगर बना देते हैं भाई। y इक्वल टू x² इक्वल टू y, x² इक्वल टू y क्या होगा, पैराबोला हो, बहुत साइड पैराबोला बना दीजिए यहाँ पे ऐसा। ओके, यहाँ पे कट करेगा ओ, एक डमी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे ए बी, एक इधर ले लेते हैं सी, दिस वन दिस, राइट। तो इसमें ले लेते हैं पहले वर्टिकल स्ट्रिप पे क्या आएगा देखते हैं। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x, ये है मेरे पास y इक्वल टू x²। राइट हैंड साइड ले लेते हैं भाई, राइट हैंड साइड डबल इंटीग्रेशन r, y वाले को x के रेस्पेक्ट में 3 हो जाएगा, x वाले को y के रेस्पेक्ट में 4y हो जाएगा, dx dy लिमिट के साथ लिख देते हैं भाई। फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट, कट पॉइंट क्या आ जाएगा 1 1, तो x इक्वल टू 0 से 1, y इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर पे क्या है पैराबोला x², अपर पे क्या है y इक्वल टू x, राइट, 3 माइनस 4y dy dx, यह है हमारे पास, राइट। इंडिकेट कर देते हैं भाई इसको, दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 से 1, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास 3y माइनस 4y² 2, लिमिट रख दीजिए x² से x dx, we get this one, integration x equal to 0 to 1, 3, upper limit x, lower limit x² minus 2, upper limit x that means हो जाएगा x² माइनस लोअर लिमिट x² है, हो जाएगा x की पावर 4,
and this dx. We get this, right? सिंप्लीफाई कर लेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन है and we get the value is 7/30. सोल्व करके देख लीजिए 7/30 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ले लेते हैं ओ ए बी। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 2x dx। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y², y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है 2x की पावर 4 dx प्लस 3x dy की वैल्यू हो गई 2x dx। कहां से कहां तक x की वैल्यू? 0 से 1, राइट? सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2x की पावर 4 तो 2x की पावर 5/5 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या? x³ 3 वैल्यू रख दीजिए 0 to 1। ओके, तो वी गेट फ्रॉम हियर 12/5। अब सेकंड ले लेते हैं BCO। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू x, तो वी कैन फाइंड dy इक्वल टू dx। वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए दिस वन, इंटीग्रेशन y इक्वल टू रख दीजिए तो हो जाएगा 2x² dx प्लस 3x dx। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 0। x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 0 रख दीजिए, राइट? क्यों? टेल वाली लिमिट आएगी लोअर लिमिट, एंड पॉइंट आएगी अपर लिमिट। माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। 2x² का क्या होगा? 2x³ 3 प्लस 3x² 2। लिमिट रख दिए 0 to 1। ओके, तो 0 to 1 अगर आप इसको पुट करेंगे, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया था, दैट इज हो जाएगा आपका -13/6। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन यू कैन राइट FC इक्वल टू 12/5 माइनस 13/6, दैट इज इक्वल टू 7/30। दिस, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। ओके, सेम तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है 2 पैराबोला। क्वेश्चन लिख देता हूं। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इंटीग्रेशन C 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। यहाँ पे आपको दिया है y² इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x²। ये आपको C दिया है, C इक्वल टू। सबसे पहले फिगर बना देते हैं भाई।
कैसे फिगर बनेगी? दो पैराबोला, ये कैसे, दूसरा अबव, यहाँ पे दूसरा। ऊपर वाला पैराबोला क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये वाला क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे। ओ, एक डमी पॉइंट ए मान लेता हूँ, बी एक डमी पॉइंट सी मान लेता हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं डबल इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड, डबल इंटीग्रेशन आर, वाई वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में करें, -6y माइनस एक्स वाले को वाई के रेस्पेक्ट में करिए, -16y dx dy। नाउ यू अंडरस्टूड। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, आप इसको करके जरूर जाए एग्जाम में, राइट। याद आ जाएगा। 10 डबल इंटीग्रेशन लिमिट रख देते हैं इसमें, इसका कट पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 1 1, तो x इक्वल टू 0 to 1 हो गया। क्या लेना है? वर्टिकल स्टेप ले लीजिए, वर्टिकल x 0 से 1, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0, और y लोअर वाले पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपर वाले पे y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, और ये था y dy dx। कर दीजिए इंटीग्रेट, tan x इक्वल टू 0 से 1, वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बाई 2 2 बार ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर, लिमिट आपको रखना है एक्स स्क्वायर से रूट एक्स dx। यहाँ से आ जाएगा 5 इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1, वाई स्क्वायर तो x रह जाएगा, -x/4 dx। we get this। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/2। अब हम आ जाते हैं इसमें लाइन इंटीग्रेशन, तो आपको सोल्व करेंगे। मैं आपको एक बार कर्व बता देता हूँ, ओ ए बी है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy इक्वल टू 2x dx। लिमिट हो जाएगी, x में कन्वर्ट करेंगे 0 to 1। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 0 to 1, वैल्यू रख देते हैं भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 8 x की पावर 4 dx प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 6 एक्स क्यूब, डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x dx। तो सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। मेरे ख्याल से इतना पढ़ने के बाद आपको ग्रीन थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोशिश करेंगे एग्जाम में इसको अच्छी तरह करके जाए। ओके, ये ले लेते हैं, दूसरा बी सी ओ, ये भी पैराबोला है। यहाँ पर आपको रखना है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, डी एक्स इक्वल टू 2y dy, राइट। इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक? इंटीग्रेशन y इक्वल टू 1 से 0, एक्स की जगह वाई स्क्वायर लिख दीजिए भाई,
एक्स की जगह वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 y⁴ माइनस 8 y² dx की वैल्यू है मेरे पास 2y dy प्लस क्या था हमारे पास 4y माइनस 6xy, तो y² इंटू वाई एंड ये होगा dy। इसको सोल्व करेंगे एंड यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी 5/2। विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 5/2। 5/2, तो पहले हमारे पास आई थी -1, अब आ गई 5/2, तो इंटीग्रेशन सी हो जाएगा मेरा -1 प्लस 5/2 3/2। मेरे ख्याल से अब आपका सोल्व हो जाएगा। एक एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं, आपके सिलेबस में लिखा है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। तो एप्लीकेशन लिख लीजिए यहाँ पे, एरिया यूजिंग ग्रीन थ्योरम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ये एप्लीकेशन है ग्रीन थ्योरम का, तो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ग्रीन थ्योरम क्या है, ग्रीन थ्योरम है मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है मेरे पास डबल इंटीग्रेशन आर 1 डी एक्स डी वाई। बट ग्रीन थ्योरम क्या कह रही है, यह डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई एंड इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। अब एन और एम की क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो वैल्यू है अंदर वाली कांस्टेंट आ जाए, या मुझे कांस्टेंट चाहिए। क्या रख, एन को मैं एक्स रख देता हूं और एम को रख देता हूं -y, तो क्या आ जाएगा यहां से एरिया इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -y dx प्लस एक्स dy, ये आ जाए। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ द रीजन बाय द ग्रीन थ्योरम। इसको आप यूज कर सकते हैं। इसे पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यूजिंग ग्रीन थ्योरम फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x, y इक्वल टू 1/x एंड y इक्वल टू x/4। बाउंडेड बाय द रीजन बताना है आपको इन तीनों कर्व से। तो सबसे पहले इनकी फिगर बनाई जाए, है ना। फिगर एक बार बन जाएगी, चलिए देखते हैं कैसे बनाए। हो गया y एक्सिस x एक्सिस, y इक्वल टू x लाइन बनाए, तो ये लाइन होगी हमारे पास y इक्वल टू x, y इक्वल टू x/4। अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू 1, ये जो लाइन है y इक्वल टू x,
इस लाइन पर आप देख सकते हैं y और x दोनों की वैल्यू सेम होगी। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1/4। तो ये जो दूसरी लाइन है ये आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगी नीचे की तरफ, लाइक दिस। तो ये ऊपर वाली लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स, नीचे वाली जो लाइन हो गई y इक्वल टू x/4, और एक कर्व है इसमें दिस वन, इसका मतलब हो गया xy इक्वल टू 1, हाइपरबोला। तो आप इसको ऐसे करके ऐसे बना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे और ऐसे। ओके, ये कर्व हो गया हमारा xy इक्वल टू 1। अब देखिए भाई इसमें O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या हो जाएंगे भाई? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट y इक्वल टू x/4, इसमें पुट कर दीजिए। x/4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ पे देखें दिस वन, ये मेरी लाइन y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू रख दीजिए इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, पानी की पॉइंट 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। ये दोनों पॉइंट आगे 1 1। अब यहाँ से एरिया निकाल दीजिए। सबसे पहले तो फार्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ द गिवन रीजन बाय ग्रीन थ्योरम इज इंटीग्रेशन 1/2 c माइनस y dx प्लस x dy। ये अब इसमें कर्व के हिसाब से चलें भाई। सबसे पहले OA, OA कर्व है हमारे पास y इक्वल टू x/4, dy क्या हो जाएगा dx/4 हो जाएगा, वो सी बात है। ठीक है भाई, ये इंटीग्रेशन में रख देते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन माइनस वाई, तो माइनस हो गया x/4 dx, ओके, प्लस x, dy की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लीजिए dy हो जाएगा dx/4, ये रख दीजिए dx/4, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आइए फॉर AB, AB में इक्वेशन है y इक्वल टू 1/x, तो dy क्या हो जाएगा -1/x² dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन पुट कर दे भाई, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस y dx, तो -1/x dx, राइट, प्लस x dy प्लस x -1/x² dx, dy की वैल्यू, राइट। तो ये आ जाएगा 2/2 माइनस आ जाएगा बाहर 1/x dx, x लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 2 से लेके 1, 2 1। ठीक है, 1/x क्या होता है, log x होता है, वो वैसी बात है, तो बताइए आपको। तो यहाँ से आ जाएगा -1/x
log x लिमिट 2 to 1, यहाँ से मिल जाएगा logarithm of 2। अब थर्ड कर्व पे आ जाते हैं। थर्ड कर्व हमारे पास क्या है, BO। BO क्या होगा देखिए, y इक्वल टू एक्स dy इक्वल टू dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन y इक्वल टू एक्स रख दीजिए, माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। ये वैल्यू भी 0 आ गई। तो इसलिए एरिया क्या हो गया, एरिया हो जाएगा तीनों का सम। तो एरिया इक्वल टू पहला 0, दूसरा log 2, तीसरा 0, दैट मीन्स logarithm of 2 हो जाएगा। दिस आंसर। ओके, how was the class? I think you enjoy the class. If you like my channel, then subscribe my channel and pass on to your friends. It may be in your college or other college, so that the maximum student should take the advantage of this YouTube channel. And if you have any demand, any topic, you want any topic, you can write on my YouTube channel. Okay, thank you very much. Bye.